Hello students of class 5th. Welcome to your English class बच्चे. So children, this is your Farhat ma'am who welcomes you all in your English class. Children, today we are going to discuss the exercises of this chapter, that is chapter number 8 of your Roots and Wings, that is Blackberries the fruit. Alright? Yes. This video is going to be the part 2. Alright? In part 2 we will discuss the exercises, and in the part 1 which I have already uploaded, in that part 1 I have explained this chapter. You can watch it on my channel. Okay, I will share you the link in the description box. You can check it from there also. Fine. Okay, so let's start the exercises. Moving to the exercises. So come to the page number 107 of your Roots and Wings. Here it is read and understand. Alright. Question number A. Answer the following questions orally. So children, here it is written orally. You have to answer these questions orally. But I will suggest you to write in your notebook, because it will be better for you, because these questions will be also asked in your exam. Okay. ऐसा मत सोचना आप कि ये सारे क्वेश्चंस ओरली बोल रहा है, इट मीन्स कि एग्जाम में नहीं आएंगे. नहीं, आपकी टीचर आपको इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर देंगे आपके एग्जाम में. हर एग्जाम में आपके आएंगे. फाइन. यस. सो डू इट इन योर नोटबुक. जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर शेयर करूँगी, देन जस्ट पाउज द वीडियो एंड देन यू कैन राइट इन योर नोटबुक. फाइन. आप वीडियो पाउज करके आप उसे लिख सकते हो. ऑल राइट. ओके. सो हेयर वी स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर ए. हाँ, इन द फर्स्ट वन वी आर कमिंग. विथ whom had एंड्रयू प्लान टू गो टू द फील्ड्स. जो एंड्रयू था, इस स्टोरी में जो कैरेक्टर है एक एंड्रयू, एक बॉय का जो नेम था, उसने किसके साथ प्लान किया था फील्ड में जाने के लिए, बाहर जाने के लिए, फॉर कलेक्टिंग द ब्लैकबेरीज. देन योर आंसर विल बी विथ हिज फ्रेंड्स ना. या. सो हेयर आई एम शोइंग यू द आंसर. ओके. सी द आंसर नंबर 1. एंड्रयू प्लान टू गो टू द फील्ड्स with his friends Peter and Carlot. Okay, here you will put comma. Fine, here it will be comma. All right. Yes, done. Now moving to the next one, that is question number 2. In question number 2 it is asking, why did Andrew want to go to the fields. जो एंड्रयू वो फील्ड क्यों जाना चाहता था. Then your answer will be, Andrew wanted to go to blackberrying in the fields with his friends. वो blackberrying के लिए जाना चाहता था ना, to for collecting those blackberries ना. Yes. So we have done question number 2 also. Moving to the question number 3. Why did Andrew drop his plan. फिर उसे लास्ट में अपने प्लान को ड्रॉप क्यों करना पड़ा था. क्योंकि उसकी मदर ने कुछ काम दिया था ना, या she assigned some work to him ना. Yes. Then your answer will be, he dropped his plan because his mother sent him on an errand to Mrs. Jones. उसकी जो मदर ने कुछ काम दिया था, और वो क्या काम था, to deliver those 4 books to Mrs. Jones. Right? Yes. उसे बुक पहुंचाना था मिसेज जोन्स के यहाँ, वो 4 बुक. That's why he dropped his plan ना. Yes. Now moving to the next one. Question number 4. What was the reaction of Mrs. Jones when Andrew reached her house. Then your answer will be, Mrs. Jones was very happy and praised Andrew for being so responsible. Done. जब here it is asking कि जब एंड्रयू मिसेज जोन्स के घर जाता है, देन व्हाट वाज हर रिएक्शन, उनका रिएक्शन कैसा था. देन योर आंसर विल बी, शी वाज वेरी मच हैप्पी. वो बहुत खुश हुई उसे देखकर, उसे, एंड शी appreciated him because he was very much responsible boy. That's why she appreciated her, she praised her. Him, sorry, not her. Him. Okay. Okay, Mrs. Jones was very happy and praised Andrew for being so responsible. Done. Now move to the question number 5. Why did Mrs. Jones ask Andrew to go to the backyard of her house. In question number 5 it is asking, Mrs. Jones जो थी, उन्होंने एंड्रयू को पीछे अपने बैकयार्ड में जाने को क्यों कहा था. पीछे जो भी उन्होंने प्लांट्स वगैरह लगे थे, उनके उधर जाने को क्यों कहा था. व्हाट वाज द रीज़न. देन योर आंसर विल बी, एज अ रिवार्ड फॉर कमिंग टू हर विद द बुक्स, मिसेज जोन्स सेंट एंड्रयू टू द बैकयार्ड टू प्लक ब्लैकबेरीज. जो मिसेज जोन्स थी, उन्होंने एंड्रयू को क्या दिया था, एक रिवॉर्ड दिया था. ओके, इट वाज जस्ट रिवॉर्ड फॉर हिम, क्योंकि उसने उनकी बुक्स ला कर दी, टाइम पर ला कर दी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल किया. दैट्स, एंड शी वाज वेरी मच हैप्पी. दैट्स वाई उन्होंने क्या कहा, एंड्रयू को
बैकयार्ड भेजा एंड देन उन्होंने कहा कि जाकर तुम वहाँ से ब्लैकबेरीज को प्लग कर सकते हो, तोड़ सकते हो. फाइन. या. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन. In question number 6, why couldn't Peter and Carlot pluck too many blackberries? जो एंड्रयू के फ्रेंड्स थे पीटर एंड कैरलोग, why didn't they pluck too many blackberries? उन्होंने बहुत सारे blackberries वो क्यों नहीं तोड़ पाए? Okay, then your answer will be, since many other children too had come blackberrying, Peter and Carlot did not get too many blackberries. क्यों नहीं तोड़ पाए थे वो लोग? क्योंकि जहाँ ये लोग तोड़ने गए थे वहाँ और भी बच्चे पहुँच चुके थे. ओके, बहुत सारे बच्चे वो लोग भी आए थे ब्लैकबेरीज कलेक्ट करने, इसलिए इनको ज़्यादा ब्लैकबेरीज नहीं मिल पाई. ओके, डन. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. Why did Andrew give some of the blackberries from his bag to his friends? Well, here it is asking, जो एंड्रयू है उसने अपने फ्रेंड पीटर एंड कैलोट को क्यों अपनी ब्लैकबेरीज अपने बैग से निकाल कर उनको दे दिया था, अपने फ्रेंड्स को दिया था. देन योर आंसर विल बी, here it is, Andrew gave some of the blackberries to his friends because he was kind and generous. देन उसने इसलिए ऐसा किया था, उसने इसलिए अपनी ब्लैकबेरीज अपने फ्रेंड्स को दे दिया था बिकॉज दैट बॉय वॉज वेरी मच काइंड एंड जनरस. वो बहुत ही काइंड था एंड जनरस था, दैट्स वाई. ओके. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. Coming to the last question, that is question number 8. Was Andrew's mother amazed to see his basket? Why? क्या जो एंड्रू की मदर थी वो उसकी बास्केट देखकर फुल ऑफ ब्लैकबेरीज, जब उसने देखा कि एंड्रू के पास एक बास्केट है जिसमें पूरे ब्लैकबेरीज से उसने भर रखा है, देन वो क्या उसकी मदर वो शॉक्ड हुई थी? वॉज शी अमेज्ड? क्या वो चौंक गई थी? इफ़ येस देन वाई? If no, then why also? You have to give the answer. Before sharing the answer of question number 8, there is one thing to tell you that बच्चे, अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं आपके स्टडीज़ में, अगर आपको मेरी वे ऑफ टीचिंग पसंद आती है, इफ़ यू लाइक द वे ऑफ माई टीचिंग, इफ़ द ऑल द वीडियोज़ are helpful for you in your studies, then do subscribe my channel and hit the like button. ओके, अगर वीडियोस आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिया करो, एंड जो भी नीचे थम्स अप करके लाइक का दिया रखा है ऑप्शन, आप उसे क्लिक कर दिया करो एंड लाइक कर दिया करो मेरे वीडियोस को. ओके, सो दैट आई विल बी मोटिवेटेड ना, मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं आपको सारे वीडियोस, ताकि मैं ना मोटिवेट होकर आपको सारे वीडियोस अवेलेबल करवा सकूँ. फाइन, मुझे आपसे तो कुछ और नहीं चाहिए, बस रिटर्निंग में इतनी सी चाहिए. ओके. ओके, देन योर आंसर विल बी yes. Andrew's mother was, here you will add yes, I forgot to write here. Okay, you will write here yes. Fine. Okay, yes, Andrew's mother was amazed to see his basket full of blackberries because it was so unexpected after she had stopped him from going blackberrying with his friends. तो उसकी मदर क्यों अमेज थी? बिकॉज जब उसने देखा उसके पास ब्लैकबेरीज फुल ऑफ, जो बास्केट थी वो फुल ऑफ ब्लैकबेरीज थी, देन शी वॉज अमेज्ड. क्यों? बिकॉज उसने ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, क्योंकि उसने तो इस चीज़ से मना किया था अपने बच्चे को ना, एंड्रयू को मना किया था जाने को, तो फिर ये कहाँ से आ गया ब्लैकबेरी? शी वॉज दैट्स वाई शी वॉज अमेज्ड. ऑलराइट. ओके, so we have done question number A. Now moving to the question number B. In question number B, here it is saying tick the correct option. Children, here 4 options are given and you have to tick the correct one. You have to tick the suitable one. Alright. See the first one. Andrew had planned to go with his friends to pluck. To pluck what? Mangoes? No. B. Grapes? No. C. Blackberries? Yes. Then your answer will be option number C. You will tick it here. Fine. Question number 2. Mrs. Jones lived in. ऑप्शन नंबर ए, जो मिसेस जोन्स थी वो कहाँ रहती थी? इट वॉज मैंशनड इन दैट टेक्स्ट बुक दैट इट वॉज टाउन. ऑलराइट. ओके, सो सर्च दैट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर ए, एंड्रयूज विलेज? नो. ऑप्शन नंबर बी, अ टाउन? येस, इट वॉज अ टाउन, क्योंकि जब एंड्रयू अपने फ्रेंड से बता रहा था कैलोट एंड से कैलोट एंड पीटर से, देन एट दैट टाइम ही मैंशन दैट कि उसे टाउन जाना है. आप वहाँ पर जाकर सर्च करो, आप वहाँ पर जाकर अपनी टेक्स्ट बुक खोलकर देखो. ओके. Come to the question number 3. Peter and Carlot met Andrew on the way and called him to go. जो उनके फ्रेंड्स थे पीटर एंड कैलोट, जब वो रास्ते में एंड्रयू से मिलते हैं, देन उन्होंने क्या कहा? कहाँ जाने को कहा उसे? देन योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, साइकिलिंग? नो. शॉपिंग के लिए कहा? नो.
Option number C, swimming, no. Then option number D, black bearing, yes. Your option number D will be your answer because it is correct. All right, उन्होंने उसे कहा था black bearing करने को. Okay, yes. So we have done question number B. Now moving to the question number C. So come to the question number C. Here it is saying answer the following questions. Question number 1. Just take out your notebook and start writing answers. Question number 1. If you have to write the answer, just pause the video. बच्चे वीडियो पॉज कर देना एंड देन आंसर लिखना आप. अगर वीडियो आगे बढ़ जाता है तो पीछे कर सकते हो. फाइन. या डबल टैप करोगे अपने स्क्रीन पर तो वो पीछे हो जाएगा. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट डिड एंड्रयूज मदर आस्क हिम टू डू? जो एंड्रयू की मदर थी उसने अपने बच्चे एंड्रयू को क्या करने को कहा था? व्हाट वर्क शी असाइन टू हिम? ऐसा कौन सा काम दिया था उन्होंने? देन उन्होंने क्या कहा था? मिसेस जोन्स के घर जाकर उन 4 बुक्स को डिलीवर करने का काम दिया था ना. याद आ रही है? यस, दिस वाज द वर्क विच ही वाज असाइंड टू डू. ओके, सो लेट मी शेयर यू आंसर्स. सो हियर द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ सी. ओके, लेट मी शो यू. सी द आंसर नंबर 1. Andrew's mother asked him to run an errand for her, carrying books to Mrs. Jones. All right? Okay. Now move to the next one. In question number 2, it is asking, why did Andrew start whistling while going to Mrs. Jones' house? जब एंड्रयू मिसेज जोन्स के घर जा रहा था तो उसने विस्लिंग करना क्यों शुरू किया? बिकॉज जब उसके मूड जब वो एंग्री होता है या फिर वो अपसेट होता है तो वो क्या करता है? विस्लिंग करने से उसकी मूड जो है वो फ्रेश हो जाती है. राइट? देन योर आंसर विल बी एंड्रयू स्टार्टेड विस्लिंग बिकॉज इट लिफ्टेड हिज मूड व्हेन ही वाज एंग्री और अपसेट. फाइन. ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. मेंशन एनी. हम क्वेश्चन नंबर सी का 3 कर रहे हैं. फाइन. या mention any 2 good qualities of Andrew that Mrs. Jones appreciated. When Andrew went to the Mrs. Jones' house, then what compliment did she give? उन्होंने ऐसे कौन कौन से वर्ड्स यूज़ किए थे एंड्रयू के लिए अप्रिसिएशन में? देन योर आंसर विल बी एंड्रयू वॉज काइंड एंड रिस्पॉन्सिबल. ओके, दिस वॉज द these were the words which these were the qualities which she mentioned. Okay, all right. Here should be is, was नहीं होना चाहिए. Fine. Here it will be is. Just do the correction here. Fine. Because here it is saying that Mrs. Jones appreciated. ऐसे आपको बताना है. Okay, जो Mrs. Jones ने appreciate करते हैं. Here should be Andrew is kind and responsible. ऐसे मोस्टली स्टोरी में को हम पास्ट में लेकर चलते हैं, वॉज यूज करते हैं, बट हेयर वी विल यूज इज. ओके, या नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. इन क्वेश्चन नंबर 4 इट इज आस्किंग डिस्क्राइब हाउ एंड्रयू प्लग्ड ब्लैकबेरीज. आपको यहाँ बताना है, डिस्क्राइब करना है कि एंड्रयू ने ब्लैकबेरीज को कैसे कैसे तोड़ा था, किस तरह से. तो आप क्या बोलोगे? वो फटाफट बड़ा ही फास्टली तोड़ रहा था एंड देन कुछ ब्लैकबेरीज को अपने माउथ में डाल रहा था एंड है ना, एंड ही वाज ईटिंग सो मच फास्ट. इस तरह से यू हैव टू मेंशन इट, यू हैव टू डिस्क्राइब हियर. ओके, देन योर आंसर विल बी, लेट मी शो यू. एंड्रयू प्लग्ड द ब्लैकबेरीज फास्ट एंड फिल्ड हिज बास्केट, आल्सो स्टफिंग देम इनटू हिज माउथ. है ना, अपने मुंह में भी डाल रहा था वो. ऑलराइट. ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5. What did Andrew do to help his friends who met him on the way while his return from Mrs. Jones' house? जो एंड्रयू है वो उसने अपने फ्रेंड्स की हेल्प कैसे की थी जब वो मिसेस जोन्स के घर से रिटर्न हो रहा था, और जब वो अपने फ्रेंड से मिलता है पीटर एंड कैरोट से रिटर्निंग के टाइम में, तो उसने अपनी फ्रेंड्स की हेल्प कैसे की थी? तो उसने अपने बैग से कुछ ब्लैकबेरीज निकाल कर उनके बैग में डाल दिया था. याद आ रहा है कुछ आपको? यस, इन दिस वे ही हेल्प्ड ना, इन दिस वे ही हेल्प्ड. So let me show you the answer. Your answer will be Andrew shared his blackberries with his friends. उसने कैसे हेल्प की थी? अपनी ब्लैकबेरीज को शेयर कर दिया था अपने फ्रेंड से. ओके, ओके. कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6. What did Andrew's mother prepare for him after he came back? जब एंड्रयू वापस आ जाता है देन उसकी मदर ने उसके लिए क्या बनाया था? देन his mother baked ब्लैकबेरी पाई ना. उसकी मदर ने क्या बनाया था? ब्लैकबेरी पाई बेक किया था लास्ट में, है ना. यस, देन लेट मी शो यू द आंसर.
So your answer will be Andrew's mother prepared a blackberry pie for him when he came back. All right? Okay. So we have done question number 6 also. So we have done till question number 6 of C. Okay. Now we are coming to the think and answer. Okay. Think and answer should be done by yourself. ये आपको करना था. You should do it by yourself. I think I should not help you. बस मुझे explain कर देना चाहिए, मुझे समझा देना चाहिए. And you should do it by yourself. Okay. क्योंकि इसमें आपकी खुद की opinion show करना है, mention करना है. और यहाँ अगर मैं बताऊँगी तो ये तो मेरी खुद की opinion हो गई ना. और हर किसी का opinion अलग होता है, हर किसी की experience अलग होती है. So you should do it by yourself. Question number A, answer the following questions. Question number 1, it is asking, in question number 1, Andrew gave some blackberries to his friends too. Which qualities of Andrew are revealed by this simple act? Here it is saying that जो एंड्रयू था उसने अपने फ्रेंड्स को अपने ब्लैकबेरीज शेयर कर दिया था, राइट? उसने अपने फ्रेंड्स को भी दे दिया था अपने ब्लैकबेरीज. तो इससे आपको क्या लगता है कि ये जो एंड्रयू था वो किस तरह का इंसान था? व्हाट क्वालिटीज़ डू यू गेट फ्रॉम दैट? उसकी इस एक्टिविटी से, इसके सिंपल एक्ट, बस उसने कुछ नहीं किया, बस ब्लैकबेरीज शेयर कर दिया. तो उससे आपको क्या फील हुआ? कैसा आपको क्या लगता है कि वो जो एंड्रयू था उसकी क्या क्वालिटीज़ थी, वो कैसा था, उसकी नेचर कैसी थी? देन अगर आपके साथ कोई ऐसा करता तो आप उसको क्या कहोगे? ही वॉज़ वेरी मच काइंड, ही वॉज़ वेरी मच जनरस. आप इस तरह के कुछ वर्ड्स यूज़ करोगे ना? यस. तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो? द क्वालिटीज ऑफ एंड्रयूज आर रिवील्ड बाय द सिंपल एक्ट दैट ही वॉज वेरी काइंड, ही वॉज वेरी जनरस. ओके ओके या. एंड देन इन द नेक्स्ट वन इट इज़ आस्किंग, डू यू ऑल्सो लाइक टू शेयर थिंग्स विथ योर फ्रेंड्स? इसी में एक और क्वेश्चन ऐड कर रखा है इसने कि क्या आप अपने फ्रेंड से कुछ अपनी चीज़ों को शेयर करना पसंद करोगे आप? तो यहाँ तो आपकी खुद की आंसर होनी चाहिए ना. यहाँ अगर मैं बताऊँगी तो ये मेरी आंसर मेरी हो जाएगी, वो मेरी ओपिनियन हो जाएगी और मेरी एक्सपीरियंस वो रहेगी. आपको यहाँ खुद का बताना है कि आप पसंद करते हो या नहीं करते हो. क्या आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करना आपको अच्छा लगता है? येस और नॉट? ओके येस. तो आप यहाँ अपने आंसर लिखो, येस और नो जो भी हो आपके. Question number 2, what would you do if your parents asked you to do some urgent work during your playtime? Give a reason in support of your decision. अच्छा, जैसे कि यह एंड्रयू की मदर ने, जब वो खेलने जा रहा था, जब वो ब्लैकबेरिंग करने जा रहा था, तो उसकी मदर ने क्या कहा कि अपने प्लान को ड्रॉप करो एंड देन जस्ट गो टू मिस्टर जोन्स टू डिलीवर दिस बुक्स. उसने एक काम दे दिया अपने एंड्रयू को और कहा ये काम करो, अपनी प्लान को ड्रॉप करो, जो अपने फ्रेंड्स के साथ जाना था उसे. तो अगर आपके साथ ऐसा होता है, आपके खेलने का टाइम है, ओके, और उस ड्यूरेशन में आपके पेरेंट्स ने कुछ काम करने को कहा, तो आप क्या करोगे? क्या आप उनके काम को करोगे? विल यू डू दैट और नॉट? इफ़ येस देन राइट इट हियर येस. अगर मेरे पेरेंट्स, इफ़ माई पेरेंट्स आस्क्ड मी टू डू सम अर्जेंट वर्क, देन आई विल डू इट. इफ़ इट इज़ नो, देन जस्ट मेंशन इट देयर नो. ओके, एंड यू हैव टू मेंशन ए रीज़न आल्सो. आप उसको बताना है क्यों और क्यों नहीं. अगर आप जैसे कि अगर आप यस कह रहे हो कि हाँ करना चाहूँगा, तो ऐसा क्यों करना चाहोगे आप? यू हैव टू शेयर योर एक्सपीरियंस, यू हैव टू शेयर योर थिंकिंग. अगर नो, देन क्यों नहीं करना चाहोगे? ओके. तो आपको क्या लगता है, ये तो आपको खुद से करना चाहिए ना? यस. ओके, मैंने इतना तो आपको समझा दिया. नाउ यू शुड डू इट बाय योर सेल्फ. So children, today we have done this one. We have completed the part 2 video, and in the part 3rd I will discuss grammar spotlight. From grammar spotlight I will start in the part 3rd. Okay. Okay, otherwise ना वीडियो जो है ना बहुत लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाओगे. Okay, so have a good day. Bye bye, and do subscribe my channel. If you like the way of my teaching, then do subscribe my channel and hit the like button. Thank you.